which I can address right now. This question coming to my mind was that since in 50s and 16, when it was a very tough time for women, right, to get into that mainstream, to get especially into the police administration, at that time you cracked all those myths and all those myths which were taking the women towards empowerment, not towards the empowerment, but towards the taboo in the society that they are not equivalent to men. So how was your journey starting from there till now? That time, when I was growing up, I grew up as a very focused girl. I grew up as a very focused girl. It was very focused. Can I just leave this here? I grew up as a very focused girl. Very, very focused girl. In the sense, मैं अभी से उसको थोड़ा सा ठीक किया इसलिए बता रही हूँ. जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे आसपास कोई रोल मॉडल नहीं थे. जी मैम. आजकल तो बहुत सारे रोल मॉडल हैं. कोई रोल मॉडल नहीं था. मेरे माँ बाप की विजन थी, क्योंकि हम लोग 4 लड़कियां थी और मेरे फादर की विजन, आई थिंक दे वर अहेड ऑफ द टाइम. तो बच्चे माँ बाप की विजन लेते हैं. मैंने अपने माँ बाप की विजन ली थी और मेरे पेरेंट्स की विजन ये थी कि लड़की किसी से कम नहीं है. उनके दिमाग में 100% था कि लड़की किसी से कम नहीं है. और इसीलिए उन्होंने हमें मैक्सिमम क्वालिटी और उन्होंने मैक्सिमम क्वालिटी एजुकेशन दी, मैक्सिमम स्पोर्ट्स खिलाए. तभी मैंने टेनिस खेली. तो ये उनकी ड्रीम थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बचपन में तो हम शुरू तो माँ बाप से करते हैं ना. उनकी थिंकिंग लेते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका फूड हैबिट्स, उनका कल्चर, उनका धर्म, उनका वे ऑफ लाइफ. जी मैम. सो आई वुड से दैट मेरे पास रोल मॉडल्स नहीं थे. मेरा रोल मॉडल सिर्फ अंदरूनी एक अग्नि थी कि मुझे बड़े होके किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है एज अ लड़की. मैं हाँ एक चीज जरूर देख रही थी कि अगर मैंने बड़े होके अपने लिए अपने पाँव पे खड़ी नहीं हुई तो मैं डिपेंडेंट रहूंगी. मैं किसी पर डिपेंडेंट रहूंगी. अपनी जरूरत की जरूरत, इवन फॉर माई एसेंशियल्स आई विल बी डिपेंडेंट, एंड आई हेटेड दैट. I hated to be dependent on others for decision making for myself. So इसलिए मैं बहुत decisive हो गई थी छोटी उम्र में. I used to take my own decisions. That I was trained to take my decisions. That was the biggest life skill my parents gave me, was clarity of mind and giving me the capability of taking my own decisions. And Indian Police Service was my own decision. Preparation was home. So my message to the youth is, if now we can go to the larger issue, is that every one of us, when we grow up, has a vision. What do I want to be? Whatever I want to be, you have to have a vision. Sometimes the vision is given by your parents, and sometimes you acquire the vision yourself because you get inspired by others. You acquire a vision. The question now is, once your destination is set, your vision is set, whatever you want to be, then you start your journey. Then you stay on the journey. Then you plan your journey. And then you give it all that you need for the journey. But अगर भटकते रहोगे तो फिर जिंदगी भर भटकते रहोगे. मैं भटकी नहीं. मैं अपने जीवन में अपना रास्ता खोया नहीं. पढ़ती गई, लायक बनती गई, खेलती गई, कमाती रही, नाम कमाती रही, एक कॉन्फिडेंस लेती रही, लेकिन ये नहीं देखा पीछे मुड़ के कि साथ मेरे साथ कोई और है कि नहीं. So I think that was my nature, which really helped me in those times. And I was still alone. That's a fact. That's a fact. Just in 1972, मुझे खुद नहीं मालूम था कि there were no more women in the IPS. But जब मुझे बताया गया कि do you know you're the first one? I said, I'm not surprised. Okay. कि जो मैं कर रही थी तो already अनोखा था. Right. No, it's great, inspirational that you were just putting in your best and you are forgetting the rest. That's and right. It's an I great. was not getting distracted. Yes. I was. So it's an. I was having the eye on the goal and keeping myself. The method was right. It was ethical method. Right.
with tremendous time management. I was an asset builder of my own. I was by nature. मुझे किसी को बताना नहीं है तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है. मेरे आज तक मेरे बॉस ने कभी नहीं बताया कि किरण इधर आओ तो मुझे बता दूं तेरी जिम्मेवारी क्या है. जब मुझे उन्होंने तिहाड़ जेल आईजी प्रिजन बना के भेजा था, मुझे किसी ने ये नहीं बताया था तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है. एक ऑर्डर आया था, किरण बेदी पोस्टेड एज आईजी प्रिजन, और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो कहते थे कहाँ जा रही है, वहां तो 2 फाइलों का काम है, तू तो वेस्ट होने जा रही है, मत जा, वहां 2 फाइलें हैं. मैंने कहा क्यों? कह रहे मैंने भी ऐसे काम किया हुआ है, वहां 2 फाइलें थी, मैं घर से ही काम करता था. एक ऑफिसर आया, उसने कहा मुझे, मैंने चुप रही, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे सामने वहां पर 10,000 लोग रहते थे जो कैदी थे. वो बड़ी बड़ी दरबारों के पीछे 10,000 रोड, ये कह रहा 2 फाइलें थी, मेरी नजर में वो 10,000 वहां रहते थे. मैंने प्रिजन के अंदर नहीं देखा हुआ था कभी, लेकिन मुझे पता था कि 10,000 लोग वहां जनसंख्या है. वो 10,000 जिन्होंने कुछ ना कुछ गलती की है और वहां गलती करके गए हुए, और वो मानसिक बीमार है, क्योंकि क्राइम वही करता है जिसको कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम, तो ही वो गलती करता है. नहीं तो समझदार होएगा तो क्राइम क्यों करेगा? वो अपने आप को जेल में करे, या बड़ा चतुर होएगा कि बचा लेगा अपने आप को. सो इसलिए जब मैं गई वहां पर, तो दुनिया ये कह रही थी कि तेरे लिए तो सजा है, और यहाँ पर तो तेरे लिए तुझे इसलिए भेजा गया कि तो यू शट बिहाइंड द डोर्स. आई सेड आई डोंट माइंड दैट, बट इफ आई हैव टेकन अ पोजीशन then I owe responsibility to these 10,000 people. क्योंकि आप यूनिवर्सिटी हैं, let me suggest to you, please request your students to read my book called It's Always Possible. उसमें सारा कुछ मैनेजमेंट लीडरशिप ही है